तैरने के नियम। स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ ठीक है। यस मास्टर जी। फ्लोटेशन लॉज। देखो किसका माइक चालू है वो बंद कर दो, जब बोलना है तब चालू करना। तो कोई चीज क्यों तैरती है, क्यों डूब जाती है, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और उसके लिए प्रिंसिपल दिया कौन से साइंटिस्ट ने? बर्नौली। आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। तो उसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ बोलो। सर मैंने चार्ट में लिख दिया आंसर। हाँ सर क्यों एक ऑब्जेक्ट डूबता है और क्यों वो फ्लोट करता है? हाँ सर मैंने आंसर लिख। अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इन छोटे बच्चों को हम समझा देते हैं, और इसके पीछे जो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, वो स्टोरी 4 मिनट की स्टोरी है, 4 मिनट कुछ सेकंड की। सो जस्ट एंजॉय इट। दिख रही है स्क्रीन? हाँ When you think of Archimedes' eureka moment, you probably think of this. As it turns out, it may have been more like this. In the 3rd century BC, Hiram, king of the Sicilian city of Syracuse, chose Archimedes to supervise an engineering project of unprecedented scale. Hiram commissioned a sailing vessel 50 times bigger than a standard ancient warship. Named the Syracusia after his city, Hiram wanted to construct the largest ship ever, which was destined to be given as a present for Egypt's ruler, Ptolemy. But could a boat the size of a palace possibly float? In Archimedes' day, no one had attempted anything like this. It was like asking, can a mountain fly? King Hiram had a lot riding on that question. Hundreds of workmen were to labor for years on constructing the Syracusia out of beams of pine and fir from Mount Etna, ropes from hemp grown in Spain, and pitch from France. The top deck, on which 8 watchtowers were to stand, was to be supported not by columns, but by vast wooden images of Atlas, holding the world on his shoulders. On the ship's bow, a massive catapult would be able to fire 180-pound stone missiles. For the enjoyment of its passengers, the ship was to feature a flower-lined promenade, a sheltered swimming pool, and bathhouse with heated water, a library filled with books and statues, a temple to the goddess Aphrodite, and a gymnasium. And just to make things more difficult for Archimedes, Hiram intended to pack the vessel full of cargo. 400 tons of grain, 10,000 jars of pickled fish, 74 tons of drinking water, and 600 tons of wool. It would have carried well over 1,000 people on board, including 600 soldiers. And it housed 20 horses in separate stalls. To build something of this scale only for that to sink on its maiden voyage. Well, let's just say that failure wouldn't have been a pleasant option for Archimedes. So he took on the problem. Will it sink? Perhaps he was sitting in the bathhouse one day, wondering how a heavy bathtub can float, when inspiration came to him. An object partially immersed in a fluid is buoyed up by a force equal to the weight of the fluid displaced by the object. In other words, if a 2,000-ton Syracusia displaced exactly 2,000 tons of water, it would just barely float. If it displaced 4,000 tons of water, it would float with no problem. Of course, if it only displaced 1,000 tons of water, well, Hiram wouldn't be too happy. This is the law of buoyancy, and engineers still call it Archimedes' principle. It explains why a steel supertanker can float as easily as a wooden rowboat or a bathtub.
If the weight of water displaced by the vessel below the keel is equivalent to the vessel's weight, whatever is above the keel will remain afloat above the waterline. This sounds a lot like another story involving Archimedes and a bathtub, and it's possible that's because they're actually the same story, twisted by the vagaries of history. The classical story of Archimedes' Eureka and subsequent streak through the streets centers around a crown, or corona in Latin. At the core of the Syracusia story is a keel, or korone in Greek. Could one have been mixed up for the other? We may never know. On the day the Syracusia arrived in Egypt on its first and only voyage, we can only imagine how residents of Alexandria thronged the harbor to marvel at the arrival of this majestic floating castle. This extraordinary vessel was the Titanic of the ancient world. Except without the sinking, thanks to our pal Archimedes. तो बच्चों क्या समझ में आया तुम्हारे? कि अगर कोई चीज उसके वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस करती है तो वो फ्लोट कर सकती है। सही बात है। तो यही अगर वाटर के वेट से कम वेट की चीज है तो वो फ्लोट करेगी, अगर वो भारी चीज है तो वो सिंक करेगी। अच्छा, तो आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिया, अगर उसको हम समराइज करें, लैंग्वेज में लिखें प्लस मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, तो वो इस तरह से है। एन ऑब्जेक्ट, ये तुम लिख सकते हो अपनी कॉपी में, एन ऑब्जेक्ट floats in water, और कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। अब कैसे फ्लोट करेगा? सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? अंडर वाटर। just level with its surface, just level with its surface. An object floats in water, submerged, तैर तो रहा है, डूबा नहीं है, पर just level with its surface, बिल्कुल उसकी ऊपरी सतह और पानी की सतह दोनों एक ही लेवल में है। If it displaces water कितना वाटर? इक्वल टू इट्स वेट। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, displaces water exactly equal to its weight. इसका मतलब ये कि उस वाटर का जो वेट है वो एग्जैक्टली इसके वेट के बराबर होना चाहिए, तो वो सबमर्ज तैरेगा। तो यहीं से हम क्लू ले सकते हैं, क्लू निकाल सकते हैं, हिंट लिख सकते हैं कि अगर उसने ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा। देखो सबमर्ज का क्या मतलब है वो मैं डायग्राम से तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज सरफेस ऑफ वाटर and here is the object. This is submerged because इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो है mg, m इसका मास है, और जब हम g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है वेट। तुम जानते हो फॉर्मूला w इक्वल टू mg, रेफरेंस साइड में लिख सकते हो। m इज मास एंड mg इज वेट। माना कि ये ऑब्जेक्ट जो है सिलेंड्रिकल है, दिस इज ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो साइड से देख रहे हैं, सामने से तो ऐसा दिख रहा है, बाकी ये सिलेंड्रिकल है। अगर मैं वाटर की सरफेस तुमको 2D में दिखाऊं कुछ इस तरह से, तो इस ऑब्जेक्ट का ऊपर जो सर्कुलर फेस है वो नजर आएगा हमको। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है कुल मिलाकर। माना कि इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h है, और क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं, इसको अगर मैं काट दूंगा तो काटने के बाद जो दिखेगा वो दिखेगा सर्कुलर एरिया, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। लंबवत काट क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, सर्कुलर है। माना कि उसकी जो रेडियस है वो रेडियस है r। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो उसका एरिया कितना होता है, क्या फॉर्मूला तुम जानते हो, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बताओ, कौन जानता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ, अगर r रेडियस है किसी सर्कल की, फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस है, रेडियस किसको कहते हैं, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सरकमफ्रेंस की किसी, तो ये r है। तो इसका जो पूरा एरिया है, यानी ये जो एरिया कवर करेगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया कवर करेगा। तो पाई आर स्क्वायर एरिया है और h डेप्थ तक कवर कर रहा है, तो हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तुम तैयार कर सकते हो अभी कुछ भी नहीं जानते हुए भी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोई बेलन है, सिलेंडर यानी बेलन, गैस का सिलेंडर वो भी इसी शेप का होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है एरिया इंटू हाइट यानी AH, और अगर हमें रेडियस पता है तो एरिया की जगह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू h। तो पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अभी यहां क्या सिचुएशन है, यहां जो ऑब्जेक्ट, इसको मैं नाम देता हूं ए, फिगर ए में क्या सिचुएशन है कि ये जो सिलेंडर है इसका वेट जो कि mg है, और डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट वो भी mg के बराबर है। वेट ऑफ d यानी डिस्प्लेस्ड, w यानी वाटर, dw मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर। समझ जाओगे या लिखने की जरूरत है, अंडरस्टूड है? ये लिखूं dw का फुल फॉर्म क्या है, डिस्प्लेस्ड वाटर। तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जब हम पानी में हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ वाटर को डिस्प्लेस करता है, इसी की वजह से हमें ऊपर की तरफ फोर्स फील होता है। तुमने एक बैलून फुलाया और उस बैलून को तुम पानी में डुबोने की कोशिश करते हो, क्या बैलून पानी में जाता है, फूला हुआ बैलून, या रेजिस्ट करता है? रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता है। क्यों रेजिस्ट करता है, एक फोर्स लगता है उस पे ऊपर की तरफ, एंड दैट फोर्स is called buoyant force. Have you heard about buoyant force? नो मौसा जी। हिंदी में कहते हैं बच्चों उत्प्लावन बल, buoyant force, जो इसको ऊपर की तरफ धकेलता है। अगर मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं, पहले तो मैं buoyant की स्पेलिंग चेक कर लेता हूं। ओके, BUOY करेक्ट। इस फिनोमिना, इसको बोलते हैं बायोन्सी। बायोन्सी की वजह से कोई चीज तैर रही है किसी भी फ्लूइड में। अभी तो हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, और फ्लूइड किसे कहते हैं, डू यू नो, कैन यू डिफाइन फ्लूइड, एनीबॉडी, कौन बताएगा फ्लूइड किसे कहते हैं? वापस से वर्ड बताओ ना क्या है। क्या वापस से बताना बेटा, लिखा मैंने यहाँ पे फ्लूइड। मौसा जी याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने पढ़ा हुआ है। डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल। ताऊजी मुझे पता है। हाँ बताओ बेटा। ताऊजी ये हमारे ये कुशनिंग लिक्विड जैसा होता है जो हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में होता है। वेरी गुड। पर जनरल टर्म में हम बात करें
भाई फ्लूइड जो है कई तरह के फ्लूइड होते हैं। जो भी फ्लो कर सकता है वो हाँ, fluid होता जनरल जनरल डेफिनेशन जो है वो ये है, एनीथिंग। है। जैसे कि तुम gases जानते हो और ये मैंने क्या लिखा सिंबल, सी के नीचे अंडरलाइन, which विच। which हाँ, विच, एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो भी बह सकता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। fluid फ्लूइड कह दो, फ्लूइड कह दो, फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड। तो जो भी बह सकता है उसी को हम कहते हैं। अब क्या हवा बह सकती है? हाँ क्या पानी बह सकता है? हाँ It means all the gases and liquids comes in the category fluid. Is it okay? समझ में आ गया फ्लूइड क्या है? तो हाँ तो कोई भी फ्लूइड, yes हाँ, कोई भी फ्लूइड बायोंसी शो करता है। एवरी फ्लूइड शोज बायोंसी। जैसे तुम्हें पता है गैस का गुब्बारा हवा में छोड़ने पर ऊपर उड़ जाता है। खेले हो ना गैस के गुब्बारे से, गैस बैलून, हाइड्रोजन गैस yes बैलून, मास्टर जी हीलियम गैस बैलून। क्यों उड़ जाता है? क्यों उड़ जाता है ऊपर? उसी उसमें कारण गैस से उसमें गैस नाइट्रोजन देखो, की वजह से गैस बैलून पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक काम कर रहा है इसका वेट mg डाउनवर्ड, दूसरा काम कर रहा है बायोंट फोर्स अपवर्ड। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये एक सर्टेन हाइट पर तैरेगा। अगर बायोंट फोर्स ज्यादा होगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर mg ज्यादा होगा तो नीचे आएगा। जैसे हम वो जो कंडील या लैंटर्न उड़ाते हैं, न्यू ईयर पे हमने उड़ाई थी, है ना, वो उसमें आग लगा देते हैं नीचे और फिर वो ऊपर उड़ जाती है हवा में। जानते हो ना लैंटर्न, या हाँ दिखाऊं? सभी लोग जानते हैं या दिखाना है उनको? यस मास्टर जी देखा हुआ है ना, पिक्चरों में भी देखा तुमने वो। तो मैंने उसमें, दुकान पे देखा था, लिया नहीं था। हाँ, तो वो नीचे उसमें आग लगाते हैं, उसमें फिर धुआं भरता है, फिर अंदर की गैस जब गर्म होती है जाती है, गर्म गर्म होने से गर्म चीजें हल्की होती है, तो अंदर की गैस हल्की होती जाती है तो उस पर बायोंट फोर्स बढ़ता जाता है। एक कंडीशन आती है जब बायोंट फोर्स उसके वेट से mg से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यहां पर हमने बायोंट फोर्स को समझा, और ये बायोंट फोर्स जो है हवा भी लगाती है, यही बायोंट फोर्स पानी भी लगाता है। कोई भी फ्लूइड ये बायोंट फोर्स अप्लाई करता है। सो माय क्वेश्चन इज, क्या तुमने ऐसे फोटो देखे हैं जिसमें कोई महात्मा हवा में तैर रहे हैं, पद्मासन में हाँ बैठे हैं, और वो अपने मतलब जमीन से ऊपर उड़ गए? या ऐसा कोई एड तुमने देखा है, बिस्किट हाँ बिस्किट का एड, मोनाको बिस्किट का एड, कि इतना लाइट है कि उसको खाओ तो हवा में तैरते हैं? हैव यू सीन, हैव यू एवर मतलब सीन? एक yes मैंने एक वीडियो देखा, मतलब ऐड देखा था। ओके, तो इट इज पॉसिबल बच्चों, योग की शक्ति से हम अपने शरीर को इतना हल्का बना लेते हैं कि उस पे लगने वाला बायोंट फोर्स हमें ऊपर ले जाता है, ऊपर उठा देता है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल। सो काफी इंटरेस्टिंग है अब बायोंट फोर्स के बारे में जानना। तो जानना चाहोगे बायोंट फोर्स के बारे में और डिटेल में? ओके, सो mg नीचे खींच रहा है सिलेंडर को, और डिस्प्लेस वाटर का वेट उसके बराबर का बायोंट फोर्स लगता है ना, इसी को मैं FB के बराबर लिख रहा हूं। और ये कितना है डिस्प्लेस वाटर का वेट वो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर को हमने इसमें इंसर्ट किया है वाटर में, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम। क्या तुम जानते हो डेंसिटी, वॉल्यूम और मास में क्या रिलेशन होता है, या भूल गए? मैंने शुरू में पढ़ाया था कभी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम? कौन बताएगा? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत काम आता है हमारे। डेंसिटी को हम दिखाते हैं बच्चों सिंबल रॉ से, इट इज कॉल्ड रॉ, RHO, रॉ, इक्वल टू मास m अपॉन वॉल्यूम v। तो अगर यहां से मुझे मास के लिए एक्सप्रेशन लिखना पड़े वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में,
तो ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m को लिखूंगा v रॉ। इज इट ओके? क्या यहां तक समझ में आया कि मैं मास को हाँ। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूं? तो मैंने मास को लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। और क्योंकि वेट था, यानी ये तो हो गया मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। लिक्विड कौन सा है? वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर और इनटू जी। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना बाइंड फोर्स लग रहा है। सो ये mg बराबर है किसके? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर h, जो हमने अभी निकाल के रखा था। हियर इज द वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर h रॉ w इनटू g। तो ये एक इक्वेशन है। अब गौर करो यहां पे बच्चों कि ये जो मास है ये किसका मास है? सिलेंडर का, ठीक है। ये m इस ऑब्जेक्ट यानी सिलेंडर का मास है, और यहां जो मास आया था वो किसका मास था? इस सिलेंडर ने जो वाटर डिस्प्लेस किया उसका मास था। उसका मास। ये सिलेंडर का मास है। यहां जो मास आया था जिसकी जगह हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखा, वो डिस्प्लेस वाटर का मास था। अच्छा, इस मास को भी मैं इस फॉर्मूले से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर, तो मैंने उसको रॉ सी लिखा, ठीक है। और जी इधर मैं आसान कर देता हूं वापस। ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, डिस्प्लेस वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। क्या हम जी को दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं बच्चों? हाँ। सो जी गेट कैंसल्ड, दोनों साइड आ रहा है, कट गया। तो हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, और वो है, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं सिलेंडर और वाटर लिखने के बजाय मीडियम एंड वाटर कर देता हूं, या चलो ठीक है, V1 रॉ 1 इक्वल टू V2 रॉ 2 कर देता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। ये सिचुएशन जब होगी, यानी ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं, तो V बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट पानी में तैरना चाहता है वो, जब बराबर होगा V डिस्प्लेस वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, तब तो ऑब्जेक्ट तैरेगा। अब बताओ डूबेगा कब? जब मैं यहां पर एक ग्रेटर देन सिंबल लगाऊंगा या लेस देन सिंबल लगाऊंगा। मान लो एक अगली कंडीशन है, वी बॉडी रॉ बॉडी, खाली बी लिख रहा हूं, ठीक है। बी स्टैंड्स फॉर बॉडी। ये तरीका होता है ग्रेजुअल शॉर्ट फॉर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कि पहले हमने पूरा पूरा लिखा, बाद में सिर्फ स्मॉल एक सिंगल लेटर से दिखाया। इधर वी डब्ल्यू एंड रॉ डब्ल्यू, तुम्हें चूज करना है। ये तो है फ्लोटिंग सबमर्ज्ड वाली कंडीशन। दिस कंडीशन इंडिकेट फ्लोटिंग सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड, सबमर्ज तैर रहा है। तो अब कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, इसके लिए तुम्हें बताना है किसमें तैरेगा किसमें डूबेगा। बताओ कौन बताएगा? फर्स्ट में तैरेगा, मतलब फर्स्ट में डूबेगा, सेकंड में तैरेगा। ओके, फर्स्ट में, क्योंकि ये वेट ज्यादा हो गया, वी बी रॉबी, वी बी रॉबी यानी वेट किसका? ये तो मास है, जी तो कट ही गया था, तो एम जी ज्यादा हो गया किससे? डिस्प्लेस से। तो ऐसे सिचुएशन में डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। अगर ऐसा हुआ, ऑब्जेक्ट विल सिंक। अब देखो डूब रहा है, तो ये तो तय है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि पूरा ही डूब गया ना, तो वॉल्यूम तो पूरा डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। हाँ। अगर ऑब्जेक्ट पूरा ही डूब रहा है, सिलेंडर पूरा पानी में जा रहा है, तो सिलेंडर अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। हाँ। इट मींस अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ डेंसिटी। तो रिलेशन क्या आया?
जिसकी भी डेंसिटी, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर है तो वो डूब जाएगी। डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर तो सबमर्ज तैरेगी, और डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर है, इस सिचुएशन की बात करते हैं। बताओ इसमें डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा। तैरेगा। अब सवाल उठता है कैसे तैरेगा? ये तो तय कर लिया ज्यादा हमने, वाटर तैरेगा। डिस्प्लेस कर दिया। हाँ, अब इसकी स्थिति वही होगी जब तुम बैलून को डुबोने की कोशिश करते हो पानी में, बैलून नीचे नहीं जाता। बैलून या कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में उतना ही नीचे जाएगा बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग को समझो कैसे। ये जो सिलेंडर था बच्चों, इसका सिर्फ उतना ही हिस्सा डूबेगा पानी में जिससे कि जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, उसका वेट इसके वेट से बैलेंस हो जाए, क्योंकि इसका वेट काम कर रहा है mg नीचे की तरफ, और अगर बायंड फोर्स बराबर हो गया तो ये फ्लोट करेगा। तो बाकी हिस्से को डूबने की जरूरत नहीं है। माना कि इसकी लेंथ जो डूब रही है इसमें वो है L लेंथ डूब रही है सिलेंडर। तो अभी सिचुएशन क्या बनेगी? अभी सिचुएशन बनेगी mg इक्वल टू बायंड फोर्स कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है, इनटू जी। तो कुछ कुछ तुम्हें समझ में आया होगा, और मैं क्लियर करूंगा आगे, इसको डिटेल में समझेंगे। मीनवाइल तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड है बच्चों सरफेस टेंशन। हम तैरा भी सकते हैं, जैसे बात हुई अभी कि डेड सी में कोई डूब नहीं सकता। तुम्हें पता है ह्यूमन बॉडी, अगर हम पानी को नहीं हटाएं तो हम तैरेंगे कि डूब जाएंगे? अगर हम पानी को नहीं हटाएं तो हम तैरेंगे कि डूब जाएंगे? डूब जाएंगे। ओके, क्या तुमने ऐसे किसी को देखा है जो बिना हाथ पैर मारे वाटर की सरफेस पर तैर सकता है सीधा लेटकर? हाँ। आंसर इज यस। मेरे पिताजी तैरते हैं बच्चों। हाँ हाँ, क्यों? कैसे तैर पाते हैं? कैसे तैर पाते हैं बच्चों? बिकॉज अंदर सांस रोक लेते हैं। सांस अंदर भर लेते हैं अपने फेफड़ों में, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी का। बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जब बॉडी पानी में डूबेगी तो क्या होगा? वाटर डिस्प्लेस करेगी। पर अगर वो वाटर डिस्प्लेस पूरा कर पा रही है तो फिर सबमर्ज नहीं जाएगी, मतलब जस्ट तैरेगी, डूबेगी नहीं। अगर वो अपने वेट के बराबर वेट का, यानी बॉडी अपने वेट के बराबर वेट का लिक्विड डिस्प्लेस कर पा रही है, तो बायंड फोर्स की वजह से तैरेगी और हाथ पैर भी नहीं चलाने पड़ेंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट। एक्सपेरिमेंट क्या करना है तुम्हें जो है एक ग्लास लेनी है बच्चों, उसको पानी भरना है उसमें, फिर उसमें एक आइस क्यूब डालना है। ठीक है, आइस क्यूब डालने के बाद वाटर का जो लेवल हो ग्लास पे मार्क कर देना। ठीक है, आइस क्यूब डालने के बाद। हाँ बोलो बेटा। एक्सपेरिमेंट को करते समय हम क्या एक वीडियो बना के ग्रुप पे भेज सकते हैं? वो तुम्हारी चॉइस है, वो तुम्हारी स्किल, तुम्हारी चॉइस है। तुम बनाना चाहो बना सकते हो और भेज सकते हो, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेगी। हाँ बोलो युविका। हमें सिर्फ एक भरा हुआ ग्लास लेना है, उसके अंदर आइस डालना है ना? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। एक ग्लास लेना, पानी भरना, पानी भरने के बाद उसमें एक आइस क्यूब डालना। आइस क्यूब डालने के बाद जो लेवल हो वाटर का, उसको ग्लास के बाहर पेन से या मार्कर से मार्क कर देना। ठीक है, अब क्या करोगे? इंतजार करना जब वो पूरा पिघल जाए आइस क्यूब, तब जो वाटर का लेवल है उसे फिर से मार्क करना, और पहले प्रेडिक्ट करना कि वाटर का लेवल कम हो जाएगा पिघलने के बाद, या बढ़ जाएगा, या उतना ही रहेगा। ओके, और फिर उसके लिए एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करना जो तुमने सीखा है उसके बेसिस पर। बोलो बेटा। जी आप होमवर्क, ये जो आपने एक्टिविटी का जो होमवर्क दिया है वो आप ग्रुप में लिख सकते हो क्या? मैं समझता हूं मैंने बोला है और ये रिकॉर्ड पर है, तो तुम इस पे सुन सकते हो जब भी तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है,
तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ताऊ जी, मैं रिकॉर्ड